We were discussing example number 11 of chapter mensuration. Let us continue. That example was in between and the bell goes. Chaliye. See, a rectangular sheet of paper with 11 centimeter as length and 4 centimeter as width, folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. देखो जहां पे तो उसने हाइट को फिक्स कर दिया, उसने कहा कि मैंने इस डायमेंशन को हाइट ले लिया, h इज 4 सेंटीमीटर, हाइट उसने 4 सेंटीमीटर को ले लिया। इसका मतलब जो बचा, क्या बचा? 11 सेंटीमीटर। वो इस तरह से दिस 11 सेंटीमीटर विच इज लेफ्ट, ये जो 11 सेंटीमीटर नीचे आपके पास बचा, ये रोल हो गया सिलेंडर की फॉर्म में पेपर, तो 11 सेंटीमीटर नीचे गोल बन गया। एंड दिस 11 सेंटीमीटर, दिस इज कवरिंग द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट। एंड व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर? सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब 11 क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल। एंड इफ वी आर टेकिंग रेडियस टू बी r, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस? 2 pi r। यानी कि 11 किसकी वैल्यू हो गई? 2 pi r। एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन में एक चीज h बनेगी, if this is h then 11 will be 2 pi r। अदरवाइज याद रखना, जिसके अलोंग आप रिवॉल्व करते हो, मोड़ते हो, वो क्या बन जाता है? 2 pi r, और दूसरी चीज क्या बन जाती है? h। ठीक है, इसमें उसने कुछ नहीं बोला कि मैंने किसके अबाउट रिवॉल्व किया, जस्ट ही इज सेइंग दैट आई एम टेकिंग दिस टू बी h। इफ ही इज टेकिंग दिस टू बी h, देन ऑब्वियसली द रेस्ट विल बिकम क्या? 2 pi r। इज इट ओके? अब यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, h आपके पास ऑलरेडी है। यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम? pi r square h। मेंसुरेशन चैप्टर्स रिवीजन इज ओवर एंड नाउ वी विल स्टार्ट। देखना अगला चैप्टर कौन सा है उसमें? फैक्टर। चलिए, let us start with the revision of visualizing solid shape. फटाफट से हम उन डेफिनेशंस को रिकॉल करते हैं that we did in the case of visualizing solid shapes, right? So first definition we did about polygon. What is polygon? Somil, what is polygon? Define polygon. Polygon is a closed figure which is made up of at least 3 line segments. First definition we did about polygon. What are the 2D shapes, Tushar? Figures which are having only length and breadth, they are called 2D shapes. Okay. Then, Anik, you tell, define 3D shapes. आपने तो फुल फॉर्म बता दी। 3D shapes are full dimensional, 3-dimensional shapes, है ना? Anyone else? आप बताओ, रिदम। 3D shapes are the 3-dimensional figures which are having 3 dimensions, that means length, breadth and height. Then we classify the polygon into 2 parts. One is the concave, हाँ वो polyhedrons है, sorry, that are the polyhedrons. We'll discuss it. First of all, we have discussed
faces, vertices, edges of some figure, then we shift to polyhedron, right? हमने डिस्कस किया था क्यूब, cuboid, cylinder, cone and sphere. This we did in 7th standard also. Faces, vertices, edges. F, V and E. इसी सीरीज में हमने फॉर्मूला भी लर्न किया था FVE में, है ना? तो हमने किया था इन केस ऑफ पिरामिड, इन केस ऑफ प्रिज्म एंड इन केस ऑफ pyramid and prism we have done it differently. We'll do that also. पहले ये देख लें. क्यूब के faces 12, vertices 6. Oh sorry. Faces 6, vertices 8, edges 12. जिस रूम में हम बैठे हैं उसके हिसाब से हम देख सकते हैं. I will just recall the things now. I will not explain it thoroughly. पूरी तरह से मैं इसको explain नहीं करूंगी thoroughly. मैंने सिर्फ जो है लंच ब्रेक पीरियड दिए 7th ए में इंटरचेंज होके 5th पीरियड हुआ है मेरा. नहीं ये क्या है, अरेंजमेंट है क्या है? ये इंटरचेंज हुआ है, क्या हुआ है? जैसे अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? 3rd, 4th पीरियड मेरा लगा हुआ है. उसके बाद 5th फ्री था. पता नहीं मुझे इन्होंने क्या किया. of cube and there is no difference. cuboid में भी हमारे पास same faces, vertices and edges. 6 faces, 8 vertices and 12 edges. 6 faces, 8 vertices and 12 edges. Then अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में we did faces are 3, vertices 0, edges 2. And then we did it in the case of cone, 2 faces, 1 vertex, 1 edge. Sphere, 1 face, no vertex, no edge. So this we did in the 7th standard also, right? Then we have done the definition of polyhedrons. Definition of polyhedrons. What are the polyhedrons? Whose all faces are polygons. Polyhedrons are those three-dimensional figures whose all faces are polygons. Polyhedrons are those figures whose all faces are polygons. जिनके सारे faces हमारे पास polygons हो, उनको हम बोलते हैं polyhedron. Then we did the 2 types of polyhedron. One is concave and convex. 2 types of polyhedron we did. One is the convex polyhedron, another is the concave polyhedron. Convex polyhedron are those polyhedron in which when we join any of the 2 points, then the lines entirely lie inside. Convex are those जिनमें हम कोई भी 2 points को अगर ज्वाइन कर दें तो जो लाइन है वो inside the polyhedron ही रहे. That are called convex polyhedron. And concave polyhedron में we did कि हमारे पास अगर 2 points को polyhedron के 2 points को ज्वाइन करके लाइन जो है वो बाहर आ जाए polyhedron के, उसको क्या बोलते हैं? concave polyhedron. We did convex and concave polyhedron. हाँ, cone is a non polyhedron because polyhedron के तो सारे faces जो हैं
वो पॉलीगन्स होने चाहिए। इसका तो एक फेस कर्व है, तो पॉलीहेड्रन होगा ही नहीं, ठीक है। सो ये हमने दो तरह के पॉलीहेड्रन्स किए थे। देन आई टोल्ड यू व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? All the faces and vertices. रेगुलर पॉलीहेड्रन वो था in which all the faces are congruent polygons, they are congruent to each other, that is called regular polyhedron. रेक्टेंगल तो पॉलीहेड्रन ही नहीं है, रेक्टेंगुलर तो 2 डायमेंशनल फिगर है। क्यूबॉइड क्या नहीं आएगा, क्योंकि क्यूबॉइड में जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल ही होते हैं सारे फेसेस, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नहीं, दो फेसेस आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट हैं, दो जो है राइट लेफ्ट वाले हैं, दो अप एंड डाउन वाले हैं कॉन्ग्रुएंट, सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो वो नॉन रेगुलर आएगा। रेगुलर पॉलीहेड्रन इज ए क्यूब इज ए रेगुलर पॉलीहेड्रन बिकॉज इसमें सारे फेसेस क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। Then we start with the definition of pyramid. Pyramid is a polyhedron in which base face is known, whose base face is known after its name, and rest of the faces are triangular. They are meeting at the common vertex. Base face is plane figure and rest of the faces are triangle meeting at a common vertex. ठीक है, तो हमने कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, बाकी के सारे फेस हमेशा ट्राइंगल होते हैं, और जो बेस फेस होता है दैट इज ऑलवेज नेम्ड आफ्टर इट्स क्या बेस फेस, नेम्ड आफ्टर इट्स बेस फेस। चलिए अब बात करते हैं, हमने पिरामिड में टाइप्स करी थी, उनको ड्रॉ करना सीखा था। this time I will just tell you the rough view of those. Earlier we did it very minutely, right? Now first of all we did the formula for the faces, vertices and edges. तो अगर हम faces की बात करें, it was n+1, vertices n+1 and this is 2n. This was the formula to find faces, vertices and edges of a pyramid. n+1 is the number of faces, n+1 is the number of vertices, and 2n is the number of edges. 2n is the number of edges. Faces, vertices, edges. Right? So अब सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड की। ट्राइंगुलर पिरामिड में हमारे पास जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगुलर पिरामिड की। सो वी नो जस्ट अ ट्राइंगल एंड अ स्लैंट में हमने एक वर्टेक्स ली और सारी वर्टिसेस के साथ इस वर्टेक्स को ज्वाइन किया, वी गेट द ट्राइंगुलर पिरामिड। व्हाट इज द फेस ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड? दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। जो इसका बेस होगा उसकी जितनी साइड होगी वो n की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे n कितना हुआ 3। तो अकॉर्डिंगली फेसेस, वर्टिसेस, एजेस कितने हो गए 4 and 6। So formula for faces, vertices, edges. Now you will go out of my class. Last warning to you. Faces n+1, that means 3 + 1, that is 4. Vertices n+1, 3 + 1, 4. Edges 2n, that is 2 × 6. Faces, vertices and edges, right? एक मिनट परमजीत मैम, क्या हुआ? राइट फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस को फाइंड करने का अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, इट विल बी इजी फॉर यू। अदरवाइज पेपर में यही सोच जाओगे 4 4 6। और सीक्वेंस याद रखना, FVE, फेविकोल का जोड़, ठीक है। इस हमने ऐड देखी हुई ना, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, तो आपने उस सीक्वेंस में याद रखना है FVE, फेविकोल, ठीक है।
F फिर V फिर E, और नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1 n+1 2n। फर्स्ट हमने ट्रायंगुलर पिरामिड किया था, सेकंड इज स्क्वायर पिरामिड। सारी वर्टिसेस के साथ टॉप वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देंगे, नीचे क्या बना के, स्क्वायर बना के। तो स्क्वायर पिरामिड में यू नो बेस फेस इज स्क्वायर, बनाने आते हैं ना, सबको सिखाए हुए मैंने। n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। So the faces are n+1 5, vertices n+1 5, edges 2 and is it okay? हाँ हाँ जी, n बेस, बेस जो होता है उसमें जितनी साइड होती है वो n की वैल्यू। बेटे प्लीज पॉइंट, सर्कल कभी बेस हो ही नहीं सकता, पॉलीहेड्रन है, पॉलीहेड्रन के बेसिस हमेशा पॉलीगन्स होते हैं, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। यस रितेश प्लीज पॉइंट। नेक्स्ट वी डिड पेंटागनल पिरामिड। पेंटागनल पिरामिड में हमने जो किया था, नीचे बेस क्या आएगा, पेंटागन। बच्चे प्लीज पॉइंट, बहुत बार बोल दिया मैंने, अब दोबारा नहीं बोलूंगी। पेंटागनल पिरामिड की अगर बात करें तो बेस नीचे वाला पेंटागन होगा, थोड़ा सा स्लैंट लिया करो, फिर अच्छे से आपका जो है बन सकता है। पहले दूर वाली वर्टिसेस को ज्वाइन करो, नजदीक वाली वर्टिसेस को बाद में। दिस इज पेंटागनल पिरामिड। आते हैं ना बनाने अब, बहुत अच्छे से हमने सीखे हुए हैं। जिसको नहीं पता चल रहा, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड लर्न। पेंटागनल पिरामिड में बेस है पेंटागन, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे, 5। तो फेसेस हो गए 6, वर्टिसेस भी 6, एजेस 10। पेंटागनल पिरामिड। देन वी डिड हेक्सागनल पिरामिड। hexagonal pyramid. So this is base face is hexagon, we all know. A B C D E F, ऐसा थोड़ा सा स्लैंट में अपर वर्टेक्स लो, पहले दूर वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करो, उसके बाद नजदीक वाले। दिस इज द हेक्सागोनल pyramid and base face is hexagon having how many sides, 6 sides. So your faces will be 7, vertices 7, sorry ठीक है, bases vertices भी कितनी आएंगी, 7 and edges 12। ठीक है, सो ये थे हमारे टाइप ऑफ पिरामिड। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मेक अ हेक्सागोनल pyramid, draw a hexagonal pyramid and marks will be given only when you draw it in 3D form। कुछ बच्चे ऐसे सीधा ही ड्रॉ करके आ जाते हैं, हेक्सागन पिरामिड ऐसे, पता नहीं कैसे कैसे, ऐसे नहीं, पूरा आपको जो है 3D फॉर्म में उसको ड्रॉ करना है। हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, एंड दिस इज द टाइप ऑफ पिरामिड्स वी डिड, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट केयरफुली, FPE n+1 n+1 2n, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली। और उसके बाद क्वेश्चन में बता रही थी, ड्रॉ हेक्सागोनल पिरामिड, राइट इट्स फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस एंड वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट वाज यूलर्स फॉर्मूला, F + V माइनस, फेविकोल याद रखना, पहले F + V माइनस E = 2। यानी कि अगर फेसेस वर्टिसेस को ऐड करके और एजेस से माइनस करके आंसर 2 आ जाए, then Euler formula verified, otherwise Euler formula is not verified। हाँ, स्क्वायर पिरामिड को हम अभी पिरामिड नहीं, वो स्क्वायर पिरामिड नहीं, स्क्वायर प्रिज्म था, वो करेंगे।
ट्रायंगुलर पिरामिड का दूसरा नेम होता है, 7th में हम करते हैं इसको, शायद मेरे स्किप कर गया, मैं नहीं मैंने नहीं लिखवाया, आपको कॉपी में लिख लेना। अनदर नेम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड इज टेट्राहेड्रन। हाँ जी, अनदर नेम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, another name of triangular pyramid is tetrahedron. Tetrahedron. ठीक है, this was the second concept in which we have learned different type of pyramids, their faces, vertices, edges, and we learned that how to you can say go with the Euler's formula. Next, prism किए थे फिर हमने, some type of prism we did. Prism is a polyhedron whose base face, which is known after its base face, and rest of the faces are either rectangle or parallelogram. बेस फेस, जैसे अगर ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो बेस फेस दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल, और आसपास के सारे फेस या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर प्रिज्म है, स्क्वायर बेसिस, आसपास के फेस जो हैं वो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं और पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं। हाँ, टॉप एंड बॉटम फेसेस दे विल बी द सेम। इतना डेफिनेशन याद है सबको? देन वी डिड टाइप्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो हमने इसके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस में क्या किया था? दिस वाज n+2, 2n, 3n। याद रखने का तरीका क्या था? 2 पे खत्म, 2 से शुरू, 2n, एक बढ़ा दिया 3n, n+2, 2n, 3n। दिस वाज द फॉर्मूला टू राइट द फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले हमने किया था ट्रायंगुलर प्रिज्म। आई टोल्ड यू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, दिस this, 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 and this. A, B, C, A, B, C, corresponding vertices, they are to join, and you will get the figure in 3-dimensional form. This is the triangular prism. हाँ जी, हाँ, डॉटेड बनाओगे तो 3D थोड़ा इफेक्ट ज्यादा दिखता है। मैंने देखा काफी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे फिगर बनाए हुए हैं कॉपी में। हाँ, इससे ज्यादा 3D लगता है। हाँ, बना सकते हो, एक सेट स्क्वायर दूसरा सेट स्क्वायर नीचे रख के बना सकते। लिसन, बस पैरेलल होने चाहिए, यू जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये हमारा बना ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब इसकी फेसेस, वर्टिसेस, एजेस की अगर हम बात करें तो आप n की वैल्यू लेनी है जो बेस होता है। इसका बेस क्या है? ट्रायंगल। n की वैल्यू 3, तो फेसेस कितने हो गए? 5, वर्टिसेस 6, एजेस 9। दिस इज फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। कम टू द नेक्स्ट, स्क्वायर प्रिज्म। बेटे आवाज नहीं। I told you you need to draw squares, parallel lines, join A to A, B to B, C to C, and D to D. You will get a square prism. We will continue tomorrow. One more lecture to this chapter. Afterwards, we will start with factorization.